Hello everyone, you are watching MP Educations. Today we will be discussing class 9 motion part 5. So in the last class we have got three formulas, you remember? What was those formulas? Just quickly remind once. First one was V equal to U plus AT. Second one was S equal to UT plus half AT square. And the third one was V square minus U square equal to 2AS. Okay? So these are the three formulas we have got. Now the next thing, we have done some numerical problems also. I hope you have all done the up to sample problem 7 and questions has been given from the exercise also. So few of the students has sent me this, the remaining should send me quickly. Today we will be representing, doing the graphical representation of motion. Okay, just understand this, graphical representation of motion. So in this video, in this part of the video, we will be discussing representation. Now graphically, how will you understand what type of motion is this? Okay. Now for understanding this, motion is what we have, I have told you that motion is always in a broader sense. So we have to split it up into smaller pieces. Like motion, when you say motion, that means what? It can be associated with velocity, it can be associated with acceleration. Now there are two types of graphs we will be doing. First is your displacement time graph. Displacement time graph. This is the first type, and the second one is velocity time graph. Okay, both we will be discussing. So you understand first, in the velocity time displacement time graph, you remember always whenever there is a displacement time graph, what is the thing that you will get? You will get velocity. So basically, what is the main thing? The displacement time graph always gives us velocity, and the velocity time graph always gives us acceleration. Okay, this part you have to keep in mind. This is the fundamental. Okay, now we will be doing the first one, displacement time graph. So we will see the displacement टाइम ग्राफ. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या टाइप का ग्राफ हो सकता है. फर्स्ट, सिंस इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो मैंने बोला था कि एक्स एक्सिस को हमेशा टाइम लेना है, तो ये बन गया हमारा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट. इफ द ग्राफ इज इन दिस वे, सो व्हाट इज द टाइप? देखो, ऐसा पहले भी किया था हम लोगों ने. मोशन जब यूनिफॉर्म होता है तब ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन. व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज एवरी टाइम इंटरवल, ये 1 2 3 टाइम इंटरवल पे दिया, तो देखो हर एक टाइम इंटरवल में ये क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो इफ इट इज सो, देन वी विल कंसीडर इट एज अ यूनिफॉर्म. नाउ मोशन, हम लोग मोशन को नहीं बोलेंगे, सिंस इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम दैट विल गिव अस वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा हम लोगों का यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ. यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, वो दोनों ही होगा. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ग्राफ नंबर 2. ये है तुम्हारा सपोज टाइम, ये है तुम्हारा है डिस्टेंस. ओके. अभी ये अगर ऐसा होगा, अभी ये ऐसा होने से क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है. सो व्हेनेवर देयर इज अ कर्व, व्हेन यू रिप्रेजेंट कर्व होने से वो क्या होगा? एक नॉन यूनिफॉर्म समझाता है. सपोज यू सी, ये पार्ट में देखो, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है. सपोज तुम खुद से ही देखो, यहाँ पे टाइम मैंने इक्वल इंटरवल भी लिया. देखो यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ से इसका जो टाइम इंटरवल है उसका देखो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है. मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस में, इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पा रहा है. So, if it is not able to complete equal distance in equal interval of time, then such kind of motion we will call it as non-uniform motion. लेकिन ये displacement time है, तो हम लोग बोलेंगे क्या? Non-uniform velocity. Non-uniform velocity. ठीक है ना? ये बात याद रखना. अभी क्वेश्चन नंबर 3 में, I mean ग्राफ नंबर 3 में आते हैं क्या?
देखो अभी अगर ऐसा सिचुएशन है, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। अभी ये अगर होता है ग्राफ तो क्या समझ में आता है? देखो अच्छे से समझ लो, ये है 0, ये है सपोज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। अभी देखो 1 सेकेंड में कहाँ पे था ये, सपोज ये जो डिस्टेंस है ये मान लो 50 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब 1 सेकंड में उसने 50 मीटर कंप्लीट किया। 2 सेकंड में भी उसका डिस्टेंस कहाँ पे है, 50 में ही है, ठीक है। 3 सेकंड में भी 50 में ही है, 4 सेकंड में भी 50 में ही है, 5 सेकंड में भी 50 में ही है। मतलब तुम्हें टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस इज फिक्स्ड। सपोज ऐसा है कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अटक गया, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, 1-1 सेकंड करके इंक्रीज हो रहा है, यस और नो। सो इफ द टाइम इज इंक्रीजिंग बट द पर्सन और द ऑब्जेक्ट इज एट सेम पोजीशन, मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 है, हाँ कि नहीं? तो वेलोसिटी 0 मतलब क्या है, तुम्हारा क्या 0 है, बोलो? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो इसका ग्राफ का मीनिंग क्या है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तब क्या होगा, ये डिस्टेंस एक ही जगह में फिक्स्ड होगा, 50 मीटर में ही है, ऑल्दो द टाइम इज इंक्रीजिंग बट दिस इज फिक्स्ड। सो क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, और वेलोसिटी इक्वल टू 0, वो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अभी देखो नंबर 4 क्या होगा, सपोज दिस इज द ग्राफ, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस। अभी ऐसा अगर ग्राफ है तो वो क्या मीन करेगा, देखो टाइम अभी बज रहा है तुम्हारा 8 बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 8, तो 8 pm में हम लोग कहाँ पे है, सपोज ये है डिस्टेंस ऑफ 10, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 20, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 30। सपोज ऐसा कभी हो सकता है क्या, तुम 8 बजे 10 मीटर में भी हो, 20 मीटर में भी हो, 30 मीटर में भी हो, इज इट पॉसिबल टू हैव एट द सेम टाइम, कैन यू बी एट डिफरेंट प्लेसेस? नहीं, इसको होने के लिए तुमको क्या होना पड़ेगा, भगवान होना पड़ेगा, बट यू एंड नाइदर यू नॉर मी आर भगवान। तो वे क्या लिखेंगे हम लोग, द ग्राफ इज रॉन्ग, द ग्राफ इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, बिकॉज ये जो ग्राफ है टाइम एक्सिस, ये क्या है, टाइम एक्सिस का परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्यों हो नहीं पाएगा, बिकॉज एट द सेम टाइम ए पर्सन कैन नॉट बी एट डिफरेंट प्लेसेस, राइट। सो दिस ग्राफ इज रॉन्ग फॉर दिस रीजन। समझ में आया ये 4 ग्राफ, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये अच्छे से समझना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा हम लोगों को, हमेशा एक्सीलरेशन देता है, ठीक है। तो इन दिस वीडियो अभी क्या करेंगे हम लोग इस पार्ट में, सपोज ये है वेलोसिटी, मैंने बोला टाइम एक्सिस हमेशा ये वाला ही होना पड़ेगा। अगर ऐसा टाइप का हुआ ग्राफ तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैंने बोला कि वेलोसिटी टाइम क्या देता है, हमेशा एक्सीलरेशन देता है। और अगर ग्राफ ऐसा टाइप का हुआ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये क्या होता है, हमेशा यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मोशन में किया था हम लोग। तो अगर वो डिस्टेंस टाइम होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब अभी अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इफ इट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हाट डू यू गेट, एक्सीलरेशन। नाउ दिस काइंड ऑफ कर्व और स्ट्रेट लाइन गिव्स यूनिफॉर्म, तो ये बन जाएगा तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। नंबर 2 देखो क्या होता है, सपोज दिस इज वेलोसिटी, दिस टाइम। अगर ये ऐसा है, देखो यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी कम था, यहाँ पे एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी वाज लेस, यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी वाज मोर। तो जब वेलोसिटी मतलब पहले कम था फिर बढ़ जाता है, तब वो क्या कहलाता है उसको, हम लोग व्हाट डू वी से दैट इट इज सेड टू बी व्हाट, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी जब मतलब कम था पहले, अभी बढ़ गया वेलोसिटी, मतलब एक्सीलरेशन। यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है, पहले जो टाइम तो इस तरफ इंक्रीज ही होगा। तो इफ यू कंसीडर दिस एंड दिस पॉइंट, देखो इस पॉइंट पे क्या था, वेलोसिटी ज्यादा था, और इस पॉइंट पे क्या था, वेलोसिटी कम था। तो इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड हियर, अगर वेलोसिटी यहाँ पे कम हो जाता है तो हम लोग ये क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा, फाइनल वेलोसिटी कम, सो इट इज रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन जब यूनिफॉर्म होगा तो ये वाला
स्ट्रेट लाइन आएगा, यूनिफॉर्म मतलब ही स्ट्रेट लाइन। तो सिंस इट इज डिक्रीजिंग इन नेचर, तो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। सो दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है। नंबर 3 देखो, ये वाला कर्व, वेलोसिटी, ये है टाइम। अगर ये ऐसा है, मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। देखने से समझ में आ रहा है, इनिशियली कम था, फाइनली ज्यादा हुआ, मतलब एक्सीलरेशन हुआ। सिंस इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन देता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन, और वो एक्सीलरेशन क्या हुआ, वहां पे नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ा, ऐसा टाइप का कर्व है। तो व्हाट डू वी कॉल इट एज, वी विल कॉल इट एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे क्या होता है। सो इन दिस वीडियो, one second, sorry, just got an interruption. Now if you consider this is t, this is v. Okay, now this is the scenario. So initially the velocity was high, then the velocity got decreased. So velocity अगर decrease होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं retardation, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं, थोड़ा कर्व में हुआ, मतलब क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये बन गया मेरा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है ना, रिटार्डेशन नोट कर लेना बच्चों। नंबर 5 देखो, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। अगर ये बोल पाए तो कुछ समझूंगा, तुम कुछ हो। देखो v है, if it is v and the line is parallel to time axis, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे देखो वो क्या था, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम था, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हुआ। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम है तो क्या है, बोलो। तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम 1 सेकंड में भी 30 था, टाइम 2 सेकंड में भी 30 था। सपोज इसका अगर तुम 30 पकड़ लेते हो, ये 30 मीटर पर सेकंड बोल के पकड़ लेते हो, तो क्या होगा, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी रिमेन्स सेम। मतलब तुम यहां से जा रहे हो, तुम्हारा स्पीड बढ़ा भी नहीं घटा भी नहीं, मतलब क्या हुआ, व्हाट यू कैन से, सो द वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो वेलोसिटी अगर बढ़ता भी नहीं है घटता भी नहीं है, सेम रहता है, मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है क्या, नहीं होता है। एक्सीलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होने से एक्सीलरेशन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो रिटार्डेशन, अगर वेलोसिटी सेम रहता है तो वो क्या होता है, जीरो एक्सीलरेशन। सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन, ये याद रखना। ठीक है। अगर वेलोसिटी के टर्म्स में बोलोगे तो इसको और क्या बोल सकते हो, और कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी रिमेन्स सेम। ठीक है ना। तो जीरो एक्सीलरेशन मतलब क्या है, दिस लाइन अगर वेलोसिटी फिक्स्ड रहा, बढ़ा भी नहीं घटा भी नहीं, कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे हम लोग जीरो एक्सीलरेशन का ग्राफ। ठीक है। और नंबर 6 देखो क्या होगा, सपोज दिस इज द ग्राफ where it is t, this is v. Okay, now मैं पकड़ लेता हूँ कि ये ऐसा है। So is this graph possible? Same reason, यहाँ पे जैसे possible wrong हुआ था, ये भी क्या होगा, ग्राफ wrong possible होगा। At the same time, suppose अभी बजा 8:15, 8:15 पे जितना टाइम, इसी टाइम पे क्या तुम अलग अलग वेलोसिटी अटेन कर पाओगे, तुम गाड़ी चला रहे हो, ओके, एट डॉट 8 o'clock तुम जहां पे हो उससे तुम और एक स्पीड में चल सकते हो क्या, नहीं चल सकता ना। so that means what, at the same time you can have only one velocity at the same time, but at the same time there cannot be multiple velocities, so that is why this graph is also wrong, this graph is wrong। ठीक है, ये ग्राफ wrong है, समझ में आया था। ओके, अभी देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने दिया था, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, याद है, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये था पहला वाला। नंबर 2 s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और नंबर 3 क्या था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as।
इतना तक? ओके, अगर इतना तक समझ में आया तो अभी देखो हम लोगों को पता है क्या, इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए दो मेथड है। वन इज योर ग्राफिकल मेथड, जो मैं तुमको बाद में सिखाऊंगा ग्राफ से कैसे निकालते हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन, बट दिस टाइम वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू सॉल्व इट अलजेब्रिकली, कि कैसे मैथमेटिक्स लगा के ये सब इक्वेशन का फॉर्मूला निकलाएगा। ठीक है, अभी तुम्हारा काम क्या है, मैं कुछ डिक्टेट करूंगा, यू हैव टू राइट दैट। ओके, तो पहले क्या लिखोगे, ऐसे लिख दो, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, पहला वर्ड v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, अभी तुम यहां से प्रूफ स्टार्ट करोगे, तो प्रूफ में जो लिखना है मैं यहां पे तुम्हें डिक्टेट करूंगा, यू हैव टू राइट। ओके, इफ यू मिस आउट तुम थोड़ा बैकवर्ड करके भी सुन सकते हो। क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, full stop, suppose it is subjected to a uniform acceleration a, small a, initial velocity लिखा था u, subjected to a uniform acceleration small a, ठीक है, so that after time t is small t, its final velocity is v, final velocity क्या हो गया अभी, v, ठीक है। और उसके बाद लिखो फाइनल वेलोसिटी v, let the distance covered by the body be small s, let the distance covered by the body be small s। ठीक है, सिचुएशन समझ में आया क्या लिखा हमने, मतलब u ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u में जा रहा था, उसने एक्सेलरेशन किया, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज किया a, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, 30 सेकंड लगा उसको। जब यहाँ पे पहुंचा उसका वेलोसिटी हो गया तुम्हारा v, और यहाँ से इतना तक जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज s। ठीक है, समझ में आएगा था। अभी देखो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, ये पैराग्राफ लिख के उसके बाद लिखोगे, वी नो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, मतलब जो डेफिनेशन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब नीचे टाइम हो जाएगा। एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट किया, a। चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज मतलब क्या है, इनिशियली था 10 मीटर पर सेकंड, बाद में हुआ वो से 25 मीटर पर सेकंड, तो कितना चेंज हुआ, 10 से 25 मतलब 15 बढ़ा, तो वो 15 कैसे निकाला, 25 माइनस 10 करके, मतलब v माइनस u करके, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो जाएगा तुम्हारा चेंज मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, बाय टाइम। अभी ये जो ये है फाइनल वेलोसिटी हो गया तुम्हारा v, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा हो गया u, टाइम हो गया तुम्हारे लिए t। अभी a को इस तरफ टेक t के साथ लेके आओ, at इक्वल्स टू क्या होगा, v माइनस u। तो v अगर इस तरफ रखते हो तो u अगर इस तरफ रखते हो तो क्या होगा, u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। आ गया आंसर, समझ में आया तब तक? ओके, अभी देखो सेकेंड वाला जो प्रूफ है वो जो करेंगे उसके लिए ये प्रूफ डन, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अभी जो सेकेंड प्रूफ है उसके लिए तुम्हें ये सब पूरा लिखना है और एक बार, ठीक है। फिर यहाँ पे टू प्रूफ की जगह क्या लिखोगे, क्या प्रूफ करना है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, फिर प्रूफ में वो वाला चीज फिर से लिखना है, फिर ये वाला करना है, ठीक है। और इसको इतना जब करोगे इसको इक्वेशन 1 दे देना है। क्यों देना है समझा रहा हूं। अभी देखो हम लोगों को क्या निकालने दिया, हम लोगों को पास क्या है पता, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो एवरेज वेलोसिटी उसके बाद लिखोगे, वी नो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ये था फॉर्मूला। तो मतलब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें क्या बन गया मैथमेटिकली, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, मतलब u प्लस v
by 2, ठीक है ना? तो ये बन गया तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना? अभी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को क्या पता है, स्पीड इक्वल्स टू या फिर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोगों को क्या निकालना है, तुमको s निकालना है। व्हाट इज s? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को एक तरफ रखो, टाइम को इस तरफ लेके आओ। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करने से तुम्हारा क्या आएगा, फिर डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखा हमने, ये वाला u प्लस v बाई 2। टाइम को क्या लिखा, इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस को क्या बनाया, s, ठीक है? अच्छा, अभी देखो ये u की जगह u ही रखा मैंने। अभी जो ये v है, ये v की जगह क्या पुट करेंगे, सेम फॉर्मूला और एक बार पुट करेंगे। v की जगह क्या पुट करेंगे, u प्लस at बाई 2 इंटू t। यहाँ पे हम लोगों ने जो अप्लाई किया उसको लिखेंगे, कहाँ से आया वो, फ्रॉम 1, मतलब 1 से हम लोगों ने इसको रेफरेंस डाला, ठीक है ना? तो u प्लस u क्या होगा, 2u प्लस at बाई 2 इंटू t इक्वल टू s। अभी देखो अगर ऐसा होता है a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होता है, a बाई 2 प्लस b बाई 2। वी कैन राइट दिस, ठीक है? ये रूल है एक। मतलब इसको अगर तुम तोड़ दोगे दो टुकड़ों में तो क्या लिख सकते हैं, 2u बाई 2 प्लस at बाई 2 होल t से इक्वल टू s। अभी 2 2 तो गया और t बाहर है, तो t के साथ u मल्टीप्लाई करने से ut प्लस इसके साथ ये मल्टीप्लाई करने से at स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू s। तो ut प्लस at स्क्वायर बाई 2 मतलब क्या है, हाफ at स्क्वायर इक्वल टू s। मतलब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है? प्रूव हुआ सेकंड वाला, समझ में आया क्या कैसे किया, देख लो एक बार फिर से, ओके? अभी देखो मैंने जूम इन कर दिया। ये थर्ड वाला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो देखो कैसे क्या करोगे। थर्ड वाला क्या था, s v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है? तो ये बन गया तुम्हारा टू प्रूफ। ये तुमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है? तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, पहले तो लेट अस कंसीडर वो वाला पार्ट तो लिखोगे, फिर क्या स्टार्ट करोगे, वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या बोलेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है ना? लेकिन देखो पूरा इक्वेशन में हम लोगों को t नहीं चाहिए कहीं पे भी, सो रिप्लेस t, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो v माइनस u इक्वल्स टू at होगा, तो v माइनस u बन जाएगा तुम्हारा बाई t करने से, बाई a करने से बन जाएगा तुम्हारा t, ठीक है? अभी क्या करेंगे, ये जो t का वैल्यू है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो सेकेंड इक्वेशन क्या है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हम लोगों का, v क्या था भूल गया, s इक्वल टू, हाँ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये था। अभी s के जगह तो s है ही, u लिखा। अभी t देखो, केयरफुली देखना, t को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा या इसका वैल्यू से, तो t क्या है, v माइनस u बाई a। तो t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस u बाई a प्लस हाफ a t स्क्वायर। t स्क्वायर मतलब क्या है, v माइनस u बाई a होल स्क्वायर हो जाएगा। तो u v माइनस u बाई a प्लस हाफ
ए इंटू ये क्या हो सकता है v माइनस यू होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ब्रेक कर दिया मैंने। तो ये कितना है a 2 बार, ये एक बार, a एक बार, तो ये और ये काटाकुटी है। ठीक है ना, तो बन गया क्या, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार, तो uv माइनस u बाई a। ठीक है, प्लस ये 2 इंटू एक a बच गया तो 2a, और ऊपर क्या है v माइनस यू होल स्क्वायर, v माइनस यू होल स्क्वायर। ठीक है, अभी फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, ये था uv माइनस यू बाई a, ये बन गया तुम्हारा v स्क्वायर प्लस माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला। अभी देखो इनमें से एलसीएम जाएगा क्या, व्हाट इज एलसीएम, a और 2a का, 2a विल बी द एलसीएम, तो 2a को अगर a से तुम डिवाइड करोगे तो मिलेगा 2, तो 2 इंटू दिस मतलब 2 इंटू uv माइनस u प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक डाउन करोगे तो क्या होगा 2uv माइनस 2u। ठीक है, और रहेगा क्या प्लस, ये कुछ गलत हुआ मुझे लग रहा है, uv माइनस, अच्छा u इंटू u क्या होगा, u स्क्वायर होगा, ये बन जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा u स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर बाई 2a। अभी प्लस 2uv माइनस 2uv गया कैंसिल, तो अभी देखो v स्क्वायर का v स्क्वायर लिखते हैं, 2u स्क्वायर से एक u स्क्वायर चला गया तो माइनस u स्क्वायर बाई 2a, और इस तरफ क्या था हम लोगों का s था लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने लिखा नहीं, तो s को अगर 2a को इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन प्रूफ। समझ में आया इतना तक? ओके, आज के लिए कुछ होमवर्क तो नहीं है वैसे, और जो अगर डाउट है क्लास का क्वेश्चंस में यू कैन कांटेक्ट मी। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब के लिए ये गोलू बटन प्रेस कर देना, ऊपर कहीं पे मिलेगा तुमको, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे होम।